Good morning, students of class 10th. In previous classes, I taught you about chlorophyll and about how the chlorophyll is necessary for photosynthesis. And in today's class, I will be teaching you about the chloroplast. Chloroplasts are found in the mesophyll cell of leaves. The green color of the plant is due to the presence of chlorophyll. As in previous classes I have taught you about that the green color of plant is due to the presence of chlorophyll. In whichever plant there is greenery, that means the leaf which is green in color, there you can see chlorophyll. ग्रीन लीफ में ही क्लोरोफिल होता है। और जैसे हम लोग देखते हैं क्रोटन प्लांट्स, उसमें येलो एंड ग्रीन का मिक्सचर होता है, तो ग्रीन कलर है वो उसी के पास क्लोरोफिल, वहीं पर क्लोरोफिल होता है। और अगर हम लोग टेस्ट भी करते हैं किसी चीज़ के लिए, या तो स्टार्च के लिए या कुछ भी, तो ब्लैक जो होता है तो वो ग्रीन कलर का लीफ है वही होता है। Now, leaves are the most suitable and well adapted organ to carry out the process of photosynthesis. Photosynthesis takes place in the leaf only. In the leaf, the cuticle layers cover the outermost cellular layer, the epidermis. Now, cuticle layer. What do you mean by cuticle? Okay, now cuticle layer is just as like a skin. हम लोगों का स्किन जैसे हम लोगों का प्रोटेक्ट करता है हमें, लीव्स के भी ऊपर लेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है ऊपर में, और आउटरमोस्ट लेयर जो होता है लीफ का, उसी को कहते हैं हम लोग क्यूटिकल। और ये जनरली होता है कैसा, वैक्सी, टू प्रोटेक्ट द लीफ एंड प्रिवेंट द वाटर लॉस। तो वो लेयर ऊपर का कैसा होता है, वैक्सी होता है, सो दैट के वाटर का लॉस उसमें नहीं हो सके। जैसे हमारा स्किन प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को, हमारे फेस को या हमारे बॉडी को, इसी तरह से क्यूटिकल लेयर भी लीफ पर होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटरमोस्ट डैमेज से, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये जनरली होता है वैक्सी, और प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, यानी कि वाटर लॉस लीफ से नहीं हो ज़्यादा, क्यूटिकल लेयर उसको प्रोटेक्ट करता है। Cuticle layer cover the outermost cellular layer, the epidermis. Below the layer, mesophyll tissue is present. Below the layer, mesophyll tissue is present, which is differentiated into palisade and spongy tissues. You can see here figure. First let me show you figure and then I will be teaching you. Now this is the leaf. You can see in figure, midrib of leaf with main vein. This is leaf blade, or that is called the lamina also, and here it is stem. Stem से वो लगा होता है leaf. Now section of a leaf showing upper epidermis, palisade tissues and stoma, means stomata. Now upper epidermis, you can see upper epidermis, and below upper epidermis what is there, palisade, mesophyll cell containing what, chloroplast, mesophyll cell. Below upper epidermis mesophyll है सेल का, और
उसके बाद यू कैन सी हियर लैटरल वेन, यहाँ पर लैटरल वेन भी आप देख सकते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल्स उसके बाद है यहाँ पे। नाउ स्टोमाटल पोर्स, स्टोमा, दीज आर द सेक्शंस ऑफ, अगर लीफ को हम लोग देखेंगे तो ये सब पता चलेगा हमें। अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड मेसोफिल सेल containing chloroplast, lateral vein, lower epidermis और इस साइड में एक स्टोमाटल पोर्स। अब उसके बाद पैलिसेड सेल शोइंग क्लोरोप्लास्ट। अब पैलिसेड सेल जो है यहाँ पर ऊपर में जो हम लोगों ने देखा, तो उसका फिर कैसे ये है क्लोरोप्लास्ट जो शो होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिएगा एरो से इट इज़ इंडिकेटेड कि सनलाइट पड़ा, साइटोप्लाज्म है इसमें, फिर वाटर आया, ये क्लोरोप्लास्ट है अंदर में ग्रीन कलर में, कार्बन डाइऑक्साइड्स मिला उसको, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, सेल वॉल। ठीक है, तो ये अब फिगर है, you can see this figure and you have to draw also. When I give you questions regarding this, you have to draw, so pay attention. Now below this mesophiles tissue is present, which is differentiated into palisade and spongy tissues. Chloroplasts are concentrated in the upper layer of the mesophyll cell of leaves. This helps them to obtain light energy very quickly. अब chloroplasts are concentrated in the upper layer of mesophyll cell of leaves. कंसंट्रेट है कहाँ है? मेसोफिल सेल के अपर लेयर में। दिस हेल्प देम टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी वेरी क्विकली, और ये हेल्प करता है इसको क्या लेने में, ऑब्टेन करने में, लाइट एनर्जी लेने में ये हेल्प करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, एज वी नो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। By using this energy, carbon dioxide and the water are combined in the chloroplast with the help of a number of enzymes to yield sugar, which is readily converted into a storable form of food, that is the starch. Now you can see here कि light is absorbed by the chlorophyll. लाइट एब्जॉर्ब करता है किससे? क्लोरोफिल से। तो फिर हम लोग ये लाइट एनर्जी को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं, कंबाइन इन द क्लोरोफिल और इन द क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम। अब ये लाइट एब्जॉर्ब किसने किया? क्लोरोफिल ने किया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से यूज़ करने के बाद कंबाइन विद द, ये कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और वाटर सब कंबाइन करता है किस में? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कंबाइन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। हर चीज़ में एक एंजाइम होता है, जैसे हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डाइजेस्ट कैसे होता है फूड? एंजाइम यूज़ करके। तो इसमें भी एक एंजाइम हम लोग यूज़ करते हैं और वो जो शुगर यील्ड करता है, शुगर जो बनाता है, उसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? स्टार्च में। द ऑक्सीजन फॉर्म इन द रिएक्शन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो बनाता है वो डिफ्यूज़ आउट, निकलता है बाहर सेल के,
और कहाँ निकल जाता है? इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में निकलता है किसके हेल्प से? थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा के हेल्प से ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है इन द प्रोसेस ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन जब होता है, यानी कि रिएक्शन कैसे हुआ? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से हम लोगों ने मतलब प्लांट में रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन जो है वो क्या बनाता है? ये बनाता है शुगर को कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में? स्टार्च में। और उस ड्यूरेशन में जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज़ होता है वो डिफ्यूज़ेस आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर डिफ्यूज़ करके निकल जाता है, एंड दैट इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है थ्रू द स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन निकलता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। The mechanisms of photosynthesis, the different steps involved in the process of photosynthesis can be summarized as follows. Capturing a light energy from the sunlight by chlorophyll. Chlorophyll का वर्क क्या है? लाइट एनर्जी को वो करना, मतलब कैप्चर करना। लीफ इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ इज द principal site of photosynthesis. Sunlight is absorbed by the chlorophyll of mesophyll tissue of leaf. हो गया? सनलाइट एब्जॉर्ब कहाँ करता है? बाय द क्लोरोफिल से। अब ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और स्प्लिट करता है वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू मेसोफिल टिश्यूज बाय ऑस्मोसिस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन फ्रॉम द एटमोसफेयर। Now then क्या होता है? रिडक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल्स एनर्जी। हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय photolysis of water as under. Now you can see reductions of carbon dioxide by hydrogen ions to form glucose बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल। अब रिडक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन आयन से टू फॉर्म ग्लूकोज। अब उसके बाद ग्लूकोज बनाया। बाय यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइन इन द क्लोरोप्लास्ट टू यील्ड शुगर। अब उसके बाद ये सनलाइट से जो एनर्जी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, ये सब क्या किया भाई? कंबाइन कहाँ हुआ? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में कंबाइन करके क्या दिया? शुगर। अब इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टोरेबल फॉर्म स्टार्च। अब वो कन्वर्ट हो गया फिर किस चीज़ में? स्टार्च में। इससे ये रिएक्शन जो होता है उस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलता है बाहर थ्रू स्टोमाटा, और ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन किया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय द डेजर्ट प्लांट्स एट नाइट and form an intermediate products which is acted upon by the light energy absorbed by the chlorophyll during the day. The glucose which is not used by the plants immediately is converted into starch and stored in the plant tissue. अब जो भी ग्लूकोज है वो यूज़ नहीं होता है प्लांट का इमीडिएटली, अगर तो वहाँ पर वो कन्वर्ट कर देता है इनटू स्टार्च और उसको स्टोर कर लेता है प्लांट टिश्यूज़ में। तो दीज आर
the methods. Now, अब significance of photosynthesis. क्या क्या है भाई photosynthesis का importance? It provides food for us. हम लोगों को food देता है. The process of photosynthesis occur in green plants, which are the primary producer in a food chain. It is essential for sustaining life. It is the ultimate source of oxygen and energy for all the living organism. Photosynthesis provide करता है food और ये sources है ऑक्सीजन और एनर्जी का for all living organisms के लिए. ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ प्लांट में. इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंथेसिस करता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. ये क्या करता है? फिक्सेस करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करता है उसमें क्या? ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर में. तो ये सब किसका वर्क है? फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड फूड फॉर अस. इट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ. इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन्स एंड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ प्लांट. It is necessary for synthesis of organic compound from inorganic compound. It fixes atmospheric carbon dioxides and releases oxygens in the atmosphere. Now, these are the significance of photosynthesis. Now, after this, I will be giving you some homework for class 10th. Okay. This you have to write in your notebook and then complete your work. Thank you.